ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ تیسرے مورچے کو اقتدار ملنے پر مسلمانوں کو ریزرویشن کے لیے آئین میں کی جائے گی ترمیم، ملائم سنگھ نے کیا دعویٰ۔ نتیجوں کے باوجود بی جے پی لیڈر گریراج کشور اپنے بیان پر اڑے، بی جے پی خود کو کیا الگ، کانگریس اور جے ڈی یو الیکشن کمیشن کی شکایت۔ بنیادی مسائل کی بجائے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے نفسیاتی خوف میں مبتلا، مسلمان حکومت امین سے لے کام دانشوروں کا مشورہ۔ یو پی ایس سی سے عربی اور فارسی ہٹانے کا معاملہ، مسلم امیدواروں کی کامیابی کے تناسب میں کمی کا اندیشہ، دانشوروں سے تشویش۔ خاص بات میں سب سے پہلے بڑی خبر۔ سماجوادی سربراہ ملائم سنگھ یادو نے کہا کہ تیسرے محاذ کو اقتدار ملتا ہے تو مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کے لیے دستور میں ترمیم کی جائے گی۔ ملائم سنگھ یادو ہاتھرس میں انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ایس پی لیڈر نے کانگریس اور بی جے پی پر زبردست نکتہ چینی کی اور کہا کہ دونوں قومی پارٹیوں کو اکثریت نہیں مل پائے گی۔ بی جے پی لیڈر گریراج سنگھ چار جانب سے تنقیدوں کی زد میں آنے کے باوجود اپنے متنازع بیان پر قائم ہے۔ گریراج نے دہرایا کہ ان کا اب بھی ماننا ہے کہ مودی کی مخالفت کرنے والوں کو پاکستان چلا جانا چاہیے۔ دوسری جانب بی جے پی نے خود کو گریراج کے بیان سے الگ کر لیا ہے۔ گریراج سنگھ کے اس بیان پر چار جانب سے تنقیدیں جاری ہیں۔ کانگریس، آر جے ڈی، جے ڈی یو، این سی پی سمیت کئی بی جے پی مخالف جماعتیں گریراج سنگھ کے بیان کی مذمت کر رہی ہے، حتیٰ کہ بی جے پی بھی گریراج کے بیان سے خود کو الگ کر رہی ہے۔ بی جے پی کی طرف سے سشیل کمار مودی جی نے صبح صبح بیان دے چکے ہیں۔ دا پارٹی کلیئرلی ڈسٹینسز اٹ سیلف فرام دس اسٹیٹمنٹ۔ اور اگر نریندر مودی آئے، بی جے پی آئی تو وہی کام ہندوستان میں کریں گے، پاکستان وروध کے نام پر۔ پاکستان وہاں بھارت وروध کا مطلب ہندو وروध ہوتا ہے، اور یہاں پاکستان وروध کا مطلب اس طرح سے وہ لوگ اس کو رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کا وروध ہے۔ تو بھارت میں بھی اسی طرح سے یہ لوگ جگہ جگہ دہشت گردی کے کیمپ کھولیں گے اور دونوں دیشوں کو لڑا کر، ویسے بھی بڑی باریکی سے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو دونوں ہی ایک ہی سکے کے دو پہلو ہوں، چاہے مسلم فنڈامنٹلسٹ ہو چاہے ہندو فنڈامنٹلسٹ ہوں۔ ایسا ہمارا دیش دھرم پیش ہے، اور جس طرح سے گریراج سنگھ جی خود اپنا چناؤ ہار رہے ہیں، اس لیے بوکھلاہٹ میں سب اٹھان بیان بولے جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی چیپ پبلسٹی، وہ کئی دنوں سے یہ غائب تھے ٹیلی ویژن اور نیوز چینلوں سے، اس لیے اس طرح کا بیان دے کر کے ٹی وی میں آنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب مسلسل تنقیدوں کی زد میں آنے کے باوجود
गिरिराज सिंह अपने बयान पर कायम हैं। मैंने यही कहा, देश के अंदर भी कई ताकतें हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं और वो पाकिस्तान को अपना मक्का मदीना मानते हैं। वैसे लोगों को भारत में देशद्रोही ही कहा जाएगा। वो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। इस दौरान बीजेपी मुखालिफ जमातों ने गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। कांग्रेस और जेडीयू के लीडरान ने इलेक्शन कमीशन के नाम एक मकतूब रवाना करते हुए गिरिराज के खिलाफ फौजदारी तर्ज पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने गिरिराज पर मजहबी मुनाफरत फैलाने और समाज में तफरका डालने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस लीडर केसी मित्तल और जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने इलेक्शन कमीशन को मकतूबात रवाना करते हुए गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मजहबी रहनुमा आम मुसलमानों को टैक्टिकल वोटिंग का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन सियासी लीडरों का मानना है कि इस तरीके से मुसलमानों को गुमराह किया जाता है। पेश लखनऊ से इरफान अली की ये रिपोर्ट। जमहूरी निजाम में अवामी मुद्दों पर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इस बार के आम इंतखाबात में अवामी मसाइल के बजाय नजरियाती बहस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। खासतौर पर मुसलमानों के मजहबी रहनुमा और दानिश्वर आम मुसलमानों को हिकमत अमली पर मबनी टैक्टिकल वोटिंग का मशवरा दे रहे हैं। मुसलमानों की संजीदा क़यादत है, वो अव्वल दिन से और आज तक इसी बात की मुसलमानों से अपील कर रही है कि आप टैक्टिकल वोटिंग करें। जहां पर जो भी कैंडिडेट जाए किसी भी पार्टी का हो, जो फिरकाप्रस्त पार्टी के कैंडिडेट को हरा रहा हो, आप सब मुत्तहिद होकर उसी को वोट दें, जिससे कि सेंटर में एक सेकुलर और मजबूत हुकूमत का क़याम अमल में आ सके। दूसरी जानिब राज्यसभा के आजाद रुकन मोहम्मद अदीब का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग सेकुलर उम्मीदवारों को जताने के नाम पर अलग अलग पार्टियों को जताने की अपील करके मुसलमानों के इंतशार का सबब बनते हैं। टैक्टिकल वोटिंग के माने मैं समझता था कि साफ छवि के लोगों को, ईमानदार लोगों को, सेकुलर लोगों को वोट दिया जाएगा, लेकिन यहां तो ऐसा हुआ नहीं है। इश्तिहार जरूर दिया जाता है, लेकिन पार्टियों के जो बड़े रहबर और लीडर हैं उनसे बंद कमरों में कुछ समझौते होते हैं और वो अलग समझौते होते हैं। आम मुसलमान को पता भी नहीं लगता कि ये कहां बिक चुके हैं। आप मुझे बताइए कि आज हर पार्टी का लीडर मजहबी लीडर के पास क्यों जा रहा है, आम इंसान मुसलमान के पास क्यों नहीं जाता? कोई हिंदू को आपने देखा कि शंकराचार्य के पास जा रहा है? कोई कैंडिडेट गया शंकराचार्य के पास? लेकिन हमारे मौलवियों के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कौम को भेड़ और बकरी बना के रख दिया है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि मुसलमान मुल्क के दीगर बाशिंदों की तरह अपनी तरजीहात की बुनियाद पर नुमाइंदे मुंतखब करना चाहते हैं, लेकिन मजहबी उलमा की अपीलें इनकी रहनुमाई करने के बजाय कंफ्यूजन पैदा करती हैं। अवाम को अपनी पसंद का नुमाइंदा चुनने का मुकम्मल इख्तियार मिलना चाहिए, इसी से जमहूरियत को ताकत मिलेगी। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। शिया आलिम दीन मौलाना सैयद कल्बुजवाद के हालिया बयानात पर बेंगलुरु के शिया दानिश्वर आगा सुल्तान ने तशवीश का इजहार किया है। जमा हुसैन कमेटी के सदर आगा सुल्तान ने कहा कि मौलाना सैयद कल्बुजवाद के हालिया सियासी बयानात मुसलमानों को गुमराह करने वाले हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मौलाना सैयद कल्बुजवाद साहब ने कहा कि बीजेपी खुली दुश्मन है मुसलमानों की। दूसरी तरफ प्रेस करते हुए वाजपेयी जी की तरह जा रहे हैं राजनाथ सिंह। ये तारीफ करना मैं समझता हूं कि ये बहुत पूरी मुसलमान कौम को हिंदुस्तान की गुमराह कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के खुली दुश्मन है बोलते हैं और एक तरफ बीजेपी कैंडिडेट की तारीफ करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर कहना है तो खुले दिल से कहें कि किसके तरफ है।
इस वक्त लोकसभा में मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट की तादाद 30 है, जबकि आबादी के तनासब से पार्लियामेंट में मुस्लिम अरकान की तादाद 72 होनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया हुसैनी मिशन ने कानपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए किया। हुसैनी मिशन का कहना है कि मौजूदा वक्त में मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने और उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोकसभा भेजने के लिए मुसलमानों को मुत्तहिद होकर वोट डालना चाहिए। हुसैनी मिशन में शिया सुन्नी तफरीक फैलाने वाली ताकतों से मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में मुस्लिम सांसद वहां पर रहेंगे नहीं, तो सरकार का क्या सवाल उठता है। आज जो मुसलमान ये लेके परेशान है कि साहब हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे या कांग्रेस की बनाएंगे, तो कल को अगर कोई सरकार बन जाती है, बंदा वहां पे नहीं है मुसलमान, तो कौन सा कानून पारित हो जाए मुसलमानों के खिलाफ, वहां तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। मुसलमानों को इस बात की फिक्र नहीं है। मुसलमान तमाम अपने अलग अलग फिरकों में बढ़कर समझिए अपने वोटों को बर्बाद कर रहे हैं और दिन पर दिन पीछे चले जा रहे हैं। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में बढ़कर आपका खैर मकदम है। मुल्क में इन दिनों मोदी और राहुल के नाम पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, लेकिन मुंबई के गोवंडी रफीक नगर के लोगों का मुद्दा कई बरसों से खटाई में पड़ा है। यहाँ के लोगों को दो वक्त की रोटी मैसर नहीं है। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे नाकस ग़िज़ा का शिकार होकर मुकम्मल अजल बन गए हैं। इनसे वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। मुल्क के अमीर तरीन लोगों का मस्कन माना जाता है। इसी शहर के मज़ाफात गोंडी में बच्चे भूख से मर रहे हैं। दुबले पतले कम वजन वाले ये बच्चे तग़ज़िया की कमी का शिकार हैं। गोंडी रफी नगर में ऐसे बच्चों की कमी नहीं और इनकी मौत कोई नई बात नहीं रही। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मल न्यूट्रिशन के खात्मे के लिए स्कीम्स तो बनाई, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमत में बैठे इस इलाके के नुमाइंदों ने इसके मुकम्मल निफाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब कुपोषण का ध्यान है उसको, और दवा पानी इलाज जो है वो करने का उसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। इधर पे हम लोग गरीब आदमी है, इधर झोपड़े में कैसे कैसे इधर पड़े हैं, दिन निकाल रहे का दिन। आबादी है इस शिवाजी नगर के खास करके, और जितने बच्चे हैं वहाँ तक वो सभी योजनाएं ठीक तरह से पहुँच नहीं पा रही है, और भी उसका ज्यादा प्रमाण बढ़ाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो भी योजनाएं का अभी फिलहाल अमल हो रहा है उसका एकदम 100% ठीक तरह से अमल नहीं हो रहा है। अगर वो ठीक तरह से अगर अमल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसका फायदा काफी बच्चों को और महिलाओं को हो जाएगा और कुपोषण कम होने के लिए मदद हो जाएगी। डंपिंग ग्राउंड पर बसने वाली ये आबादी दुनिया जहान के मसाइल से दो चार है। पूरे मुंबई का कचरा यहाँ आकर जमा होता है। इन लोगों को वोट देने का हक तो दिया गया, लेकिन सेहत और अच्छी जिंदगी का हक इनसे छीन लिया गया। ये लोग झोपड़ी बनाकर डंपिंग ग्राउंड पर रहने पर मजबूर हैं। मकामी इंतजामिया ने इनके घरों को भी मिसमार कर दिया। मुंबई नॉर्थ ईस्ट पार्लिमानी हल्के में आम आदमी पार्टी से मशहूर समाजी कारकुन मेधा पाटकर, बीजेपी से किरीट सोमैया और एनसीपी से संजय दीना पाटिल उम्मीदवार हैं। संजय दीना पाटिल मुंबई नॉर्थ ईस्ट से सिटिंग एमपी हैं। इस इलेक्शन में गोंडी डंपिंग ग्राउंड एक अहम मुद्दा है। मुंबई का पूरा कचरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और वो ठीक से ट्रीटमेंट प्लान न होने की वजह से इतने लोगों को परेशानी होती है कि मिलन के अगर आप हरिओम नगर में जाए तो लोगों को रहना, मतलब आप और मैं तो रहना सोच ही नहीं सकते, कैसे रह रहे। तो हर नेता यहाँ पर आता है, नेता को बड़ी बड़ी बातें बड़े वादे करके जाते हैं, कोई वादा उनको पूरा नहीं होता है। बीजेपी, आप और एनसीपी में यहाँ कांटे का मुकाबला है। तीनों पार्टियों के उम्मीदवार रफी नगर के लोगों के मसाइल हल करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में तग़ज़िये की कमी की वजह से बच्चों की मौत का मामला कब थमेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ईटीवी न्यूज मुंबई। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने बेंगलुरु में वज़ीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ कमरुल इस्लाम से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर और नवमुंतखब चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड की तरक्की और इससे जुड़े मसाइल पर तबादला ख्याल किया।
इस दौरान रियासती वजीर कमरुल इस्लाम ने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और बोर्ड की तरक्की के सिलसिले में रियासती हुकूमत के इक़दामात पर रोशनी डाली और नवमुंतखब चेयरमैन को कुछ मुफीद मशवरे दिए। के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने, सिद्धरामैया सरकार ने और मैं एज ए मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज एंड वक्फ सबसे ज्यादा फंड मैंने ये नहीं दिया। हिंदुस्तान में आज कर्नाटका फंड्स देने में नंबर 1 है। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नवमुंतखब चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने रियासत के वक्फ बोर्ड का एक मिसाली वक्फ बोर्ड बनाने के अज़्म का इजहार किया है। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड के सभी अरकान को एतमाद में लेकर औकाफी इमलाक की तरक्की की जानब तवज्जो देंगे। बाजारे के बेंगलुरु के सनतकार डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मुतवल्ली के जुमरे के तहत रियासती वक्फ बोर्ड के लिए रुकन मुंतखब हुए थे। मोहम्मद यूसुफ ने एक ऐसे वक्त कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की कमान संभाली है जबकि बोर्ड आपसी इख्तलाफात और खींचतान का शिकार है। इससे बोर्ड की छवि को कहीं न कहीं धक्का पहुंचा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ, जो अभी अभी कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे का जायजा लिए हैं। सबसे पहले मुबारकबाद। सबसे पहले मैं अल्लाह का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक से का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। हमारे मुतल्लिम साहिब का और हमारे अराकिन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नाचिस को इस वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किए। साहब, जो इख्तलाफात रहे हैं पिछले दिनों में हम देखते हैं, जो बयानबाजी हुई है चेयरमैन और अरकान के दरमियान या फिर चेयरमैन और वजीर औकाफ कमरुल इस्लाम के दरमियान, इससे जो है बोर्ड की छवि जो है मुतासिर हुई है और इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या कोशिश होगी? क्या है, अवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जब पार्लियामेंट में इख्तलाफात चले हैं तो असेंबली में भी चलते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। इतना क्या भी कोई सीरियस मैटर नहीं है। वी आर ऑल वन। सब मिलकर वक्फ बोर्ड को आगे ले जाएंगे। 100%, 100% आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तमाम मेरे साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए, वक्फ इमलाक की तरक्की के लिए कोई मंसूबा आप रखते हैं? जी, अभी मैं वक्फ बोर्ड के अराकीन से मशवरा करके रेजोल्यूशन पास करके हर चीज के सब कमेटीज बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, फॉर डेवलपमेंट पर्पस जो भी बिल्डर्स हैं कर्नाटका स्टेट के अंदर, उनकी राय मशवरे से हमें एक डेवलपमेंट सेल बनाएंगे। उसके अंदर जितने भी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज जो पड़े हैं उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जो नेशनल वक्फ काउंसिल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसकी मदद से हम डेवलप करेंगे, यानी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम मदद करेंगे और हमारे मुतल्लिम साहब को हम समझाएंगे द डेवलपमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड का लीगल सेल है जो काफी कमजोर है, इसकी बेहतरी के लिए आप क्या कोशिश करें? इंशाल्लाह उसका भी हम लीगल सेल बनाएंगे। उसके अंदर रिटायर्ड जजेस से, हमारे एक्सईओ से जो तजुर्बेकार लोग आए उनको सब एक लीगल सेल बनाएंगे और डे टू डे जितने भी हमारे कोर्ट के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वॉच करेंगे, बराबर से अटेंड करेंगे। इंशाल्लाह ये सब थोड़ा टाइम लगता है। सबसे बड़ा मसला जो है वक्फ बोर्ड के सामने वो नाजायज कब्जों का है। नाजायज कब्जा जात को हटाने के लिए आपकी क्या कोशिश होगी? तो एज पर द न्यू एक्ट आवर सीओ इज वेरी मच वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत है। एक्ट के मुताबिक है, उनको खुद पार्लियामेंट ने अथॉरिटी दे चुकी है कि उन्हें खुद वारंट इशू कर सकते हैं डीसी को टू रिकवर और प्रॉपर्टी। और दूसरे जितने भी जो केसेस हैं कोर्ट्स के अंदर, हमारे मुतल्लिम साहब को हम दरखास्त करेंगे कि बोर्ड का जो टेबल पर बैठ के खामोखा वो मिल्लत का भी नुकसान, कौम का भी नुकसान, उनका भी नुकसान, बोर्ड का भी टाइम नुकसान, जो भी आमने सामने बैठ कर फैसले कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह ये कोर्ट्स के मामले जहां तक हो सकता है हम खत्म करेंगे। रियासत में जो ताकतवर सियासी लीडरान हैं जो वक्फ के जमीनात पर कब्जा जमाए हुए हैं, क्या उनके खिलाफ भी आपकी कार्रवाई होगी? won't be रहने दो। With the board resolution, as per the act, as per the law, definitely board will take action.
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وقف بورڈ کا زیادہ تر وقت کمیٹیاں بنانے میں، اضلاع کی کمیٹیاں بنانے میں ہی ضائع ہوتا ہے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کریں گے آپ؟ انشاءاللہ اس کو ہم، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹے پیمانے پر یہ سب چیزیں ختم کریں گے. بڑے پیمانے کے اوپر ہمارا مین ایجنڈا ہے کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ، ریکوری آف پراپرٹی، میکنگ سیلز ویری اسٹرانگ، ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنانس. وی ہیو ٹو امپروو اوور فائنینشیل کنڈیشن آلسو. اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں وہ سب کمیٹی کے ذریعے سے، لیگل سیل کے ذریعے سے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آخر میں کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ قوم اور ملت کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، تعلیمی، معاشی، یہ سب چیزوں کو ترقی دینا چاہتا ہوں. ہماری قوم کا بہت فائدہ ہونے کا ہے، اور جتنا بھی وقف بورڈ کے پراپرٹی سے اوقاف کی املاک ہے اس کی تحفظ کرنا یہ ہمارا کام ہے. اور اس کے لیے ہمارے متولین صاحبان سے گورنمنٹ کا بہت بہت شکریہ یوسف صاحب ای ٹی وی سے بات کرنے کا. ناظرین، یہ تھے کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے نئے چیئرمین ڈاکٹر محمد یوسف صاحب بورڈ کے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کرناٹک میں وقف املاک کی ترقی اور تحفظ کے لیے کئی ایک منصوبے رکھتے ہیں. کیمرہ مین ناگیش کے ساتھ رؤف احمد، ای ٹی وی نیوز، بنگلور. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک اور بریک کے بعد. خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. عربی اور فارسی زبان کو سول سروسز امتحانات سے باہر کیے جانے سے متاثر ہوئے امیدوار اپنے مضامین بدل کر تیاری کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے IAS کے عہدوں کا خواب دیکھنے والے یہ طلباء اردو اور دوسرے مضامین لے کر تیاری کر رہے ہیں. سول سروسز میں مسلمانوں کا تناسب ابھی تک 3 سے 4% کے درمیان رہا ہے، اور کم ہی امیدوار IAS کے طور پر منتخب ہوتے ہیں، جن میں عربی اور فارسی زبان کے امیدوار بھی شامل ہوتے ہیں. تاہم اس بار عربی فارسی زبانیں امتحان میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعداد مزید کم ہو سکتی ہے. مینس کامیاب امیدوار اور دانشور طبقہ اس تعلق سے کیا سوچتا ہے، سنیے انہوں کی زبانی. عربی اور فارسی سے تیاری کرنے والوں کو میں جانتا ہوں، حالانکہ میں نے خود کبھی نہیں ان سبجیکٹس کو پڑھا ہے UPSC کے لیے، لیکن اب کی بات کیونکہ عربی ہے نہیں کوئی اس میں اور فارسی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، تو ان تمام لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی دوسرے آپشن کی تلاش ہے. ان میں سے کئی سارے لوگوں نے اردو لٹریچر کی طرف بھی رخ کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی ایک پرابلم تو ہے ہی کہ ان کو اپنا جن ایسے سبجیکٹ جن میں وہ کافی رکھتے تھے اور جنہیں کافی حد تک اس کی تیاری کر رکھی تھی، اس کو چھوڑ کے ایک نئے سبجیکٹ کی تلاش کرنی پڑے گی. اس میں اچھے پرسنٹیج مل رہے ہیں. یہ 10 لوگ اگر امتحان میں بیٹھتے ہیں تو اس میں 500 سے 7 لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. سلیکٹ مینس کی ریٹن کوالیفائی کر لیتے ہیں، تو نقصان تو ہے، اس بار بھی نقصان ہوگا. عربی فارسی مضامین لے کر تیاری کرنے والے امیدوار عام طور پر مسلم ہوتے ہیں، جن کے IAS بننے کا راستہ اب مسدود ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں میں بھی UPSC کے فیصلے پر اعتراض جتایا جا رہا ہے. یہ بھاشا جو نکالی گئی ہے ہم اس کا مخالفت کرتے ہیں، اور یہ بھاشا 12 سال میں ہمارے دیش میں چل رہی ہے. عربی ہے، فارسی ہے، ان کو شامل کیا جائے. ہم اس چیز کی مانگ کرتے ہیں. جن بچوں نے تیاری کر لی 10 سال یا 5 سال، ان کا تو بہت نقصان ہوا نا. اب یہ کیسے کراس کر پائیں گے؟ اور پھر عربی بھاشا 40 دیشوں میں 50 دیشوں میں لوگوں کو سمبند ہے، بہت بڑا فرق پڑے گا. سول سروسز امتحان میں مسلم امیدواروں کی تعداد کم ہونے کے باوجود عربی فارسی جیسے مضامین کی وجہ سے دوسرے طبقوں کے امیدواروں کے مقابلے میں کامیابی کا تناسب کسی حد تک اطمینان بخش رہتا تھا، لیکن عربی فارسی کو UPSC سے ہٹائے جانے سے اس تناسب میں کمی آنا یقینی ہے. ETV نیوز، دہلی. خاص بات میں فی الحال اتنا ہی. آداب.